answer this question. Which of the following curves describes the inverse relationship between rates of unemployment and corresponding rates of inflation? Which is correct? बाकी स्टूडेंट्स कुआडे गले डिस्कशन बोली ओके सो द आंसर इज एटा पढ़थिले हमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स मु आपन डिटेल ले बुझेइतले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिस्क्राइब्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन the rates of unemployment and corresponding rates of inflation? The answer is Phillips curve. The answer is Phillips curve. Now what do you mean by this Phillips curve? Phillips curve. Phillips curve, see. This is rate of inflation, and this is unemployment, rate of inflation and unemployment. Question कौन पचार? What is the question? Inflation, unemployment and inflation. There is inverse relationship. That means if rate of inflation is high, then unemployment is low. If rate of inflation is high, unemployment is low. If rate of inflation is low, then unemployment is high. Jodi rate of inflation कम अच्छी, if this is our rate of inflation, then unemployment is quite high, and this is our rate of inflation, then unemployment is low. So there is the Phillips curve shows inverse relationship between rate of inflation and unemployment. Fine. हम detail discuss करते later. Fine. तब आउ गोटे कर्व पचार से व्हाट इज दैट कर्व? Laffer curve. Laffer, what is Laffer curve? What is Laffer curve? Laffer curve हम डिस्कस करनथिले कोथि डिस्कस करथिले को चैप्टर रे Laffer curve हम डिस्कस करथिले को चैप्टर रे नोट्स भी देइथिले म आपन को व्हाट इज Laffer curve? Laffer curve हम डिस्कस करथिले कोथि रे in the chapter of taxation. In the chapter of taxation. So what does this Laffer curve says? This is tax revenue, this is tax revenue, and this is tax rate. This is tax rate, Laffer curve, tax rate, and the shape of Laffer curve is inverted U shape. The shape of Laffer curve is inverted U shape. That means कौन कहूची Laffer curve कौन कहूची? If the tax rate keeps on increasing, जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रेट को जदि बढ़े बढ़े चलिवो ताले गवर्नमेंट रो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ी बढ़ी चलिवो जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रेट को जदि बढ़े बढ़े जाउची ताले टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े बढ़ी चलिवो बुझ पड़ले इफ दिस इज आवर टैक्स रेट देन टैक्स रेवेन्यू इज दिस बुझ पछन इफ द गवर्नमेंट लेट्स से दिस इज 10% टैक्स रेट and this is let's say 15% tax rate then government's revenue is this the tax rate जदि बढ़ी बढ़ी चलला then tax revenue भी गवर्नमेंट रे बढ़ी बढ़ी चलिवो फाइन किंतु गोटे पॉइंट आसीबो जोटी कोन हबो टैक्स रेट भी मैक्सिमम हबो एंड टैक्स रेवेन्यू भी मैक्सिमम जदि ए बियॉन्ड दिस टैक्स रेट इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्स रेट जदि ए पॉइंट पर जदि गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज करूची देन व्हाट विल हैपन टू द टैक्स रेवेन्यू विल decrease it will start decreasing see it will start decreasing tax revenue is decreased this is Laffer curve fine Laffer curve shows the relationship between what tax revenue and tax rate fine आ गुड कर्व अछि कोन कर्व अछि एटा हां मैक्सिमम पॉइंट अछि मैक्सिमम रेवेन्यू ग्रोथ ओके मैक्सिमम पॉइंट रो ना होछि मैक्सिमम रेवेन्यू ग्रोथ फाइन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू आ गोटे कर्व अछि कोन कर्व छिटा कुजनेट्स कर्व कौन शो करछि this shows relationship between GDP per capita and inequality हम चैप्टर पढ़िने सेथरे एक्चुअली ए कुजनेट्स कर्व ता आसीबो the Kuznets curve shows the relationship between inequality and
जीडीपी पर कैपिटा, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी पर कैपिटा? जीडीपी पर कैपिटा माने जीडीपी पर कैपिटा मीन्स average income per head income. Fine. Kuznets curve, the shape of Kuznets curve is also inverted U shape. Inverted U shape. That means if GDP per capita of a country, जदि गोटे कंट्री रो जीडीपी पर कैपिटा जदि इंक्रीज करी करी चलची बिगिनिंग स्टेज रे, बिगिनिंग इनिशियली जदि गोटे कंट्री रो जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज करी करी चलची, देन व्हाट विल हैपन टू इनइक्वालिटी? समाज रे इनइक्वालिटी रो स्तर कोन बढ़िबो ना कमिबो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व? वर्तमान सपोज जीडीपी पर कैपिटा गोटे देशर जीडीपी बढ़ी बढ़ी चलची इनिशियल स्टेज रे, जीडीपी पर कैपिटा कि गोटे पर्सन रो एवरेज इनकम बढ़ी बढ़ी चलची गोटे कंट्री रे, देन व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी? विल इट कीप ऑन इंक्रीजिंग और व्हाट? इनइक्वालिटी विल इंक्रीज है ना। जदि जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज करी करी चलची इनिशियल स्टेज रे, ताले इनइक्वालिटी भी इंक्रीज करी करी चलिबो। गोटे पॉइंट आसीबो जोटी कोन गोटे पॉइंट पर जदि जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी बढ़ी चलिबो, देन इनइक्वालिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इनइक्वालिटी तापर कमी कमी आसीबो। बुझि परछन्ती? फाइन, दिस इज कुजनेट्स कर्व। आ गोटे कोन कर्व अछि सेतरे? एंगल्स कर्व। ओके, एंगल्स कर्व कोन कहूची? एंगल्स कर्व एक्चुअली एंगल्स कर्व देखो, एंगल्स कर्व मु आपनको कहि नथिली, एक्चुअली एटा भी इन्फ्लेशन रे थिला, गोटे कर्व मिस हो जाइछि। एंगल्स कर्व इज लिखि दियन, एटा लिखि दियन। एंगल्स कर्व इट इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एंगल्स कर्व indicates how much quantity of a commodity a consumer will consume at different levels of income. How much quantity of a commodity a consumer will consume at different levels of income. बुझी परछन जोडा मु डाकिले? It indicates how much quantity of a commodity a consumer will consume at different levels of income. एटी हमको देखिया पड़ियो with respect to Engels curve with respect to normal goods, Engels curve with respect to normal goods and inferior goods, normal goods and inferior goods. अच्छा, can you tell me what is normal goods? What is a normal good? नॉर्मल गुड क्या कह जाए? हमें डिस्कस करना था क्लास रे। हाँ, नॉर्मल गुड डेफिनेशन कौन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल गुड? एसेंशियल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, व्हाट वाज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल गुड? व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड रो डेफिनेशन टा कौन थिला? नॉर्मल गुड सब नोट रे ही अच्छी, नोट रे। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose demand increase. Normal goods are those goods whose demand increase with an increase in income. इनकम बढ़िले जो गुड्स रो डिमांड बढ़े ताको हम कौन कहू? नॉर्मल गुड। इनकम बढ़िले जो गुड्स रो डिमांड कमे ताको हम कौन कहू? इनफीरियर गुड्स। बुझी परछन? जदि इनकम बढ़िला, आपण सपोज 2 टंकिया चावल खाउतले, आपण इनकम बढ़िला तो आपण से 2 टंकिया चावल खाइबे नाइ ना, वर्तमान कोन खाइबे? आउटे क्वालिटी राइस खाइबे। बुझी परछन? तो ता माने कोन हला? इनकम बढ़िवा सहित 2 टंकिया चावल रो डिमांड ता कमिला ना बढ़िला? कमिला। दैट मीन्स वी कैन कंसीडर 2 रुपीज राइस as inferior good. बुझी पारले? आपण सपोज लुना चलाउछंती, इनकम बढ़िला तो 2 व्हीलर डिमांड बढ़िबो ना, आपण साइकिल को पळे आसीबे ना, कोन करिए? बढ़िबो ना, तापर बाइक किनिबे, तापर कार किनिबे। बुझी पारले? बुझी परछन? तो दैट मीन्स 2 व्हीलर इज अ नॉर्मल गुड, कहीं इनकम बढ़िया सहित 2 व्हीलर डिमांड टा बढ़ुची। आपण लुना चलाउतले 2 व्हीलर, एबे वर्तमान ताठू गोटे बाइक किनुचंती। बुझी पारले? तो दीज आर नॉर्मल गुड्स। तो इनकम बढ़िले जदि डिमांड बढ़ुची ताले नॉर्मल गुड, इनकम कमिले जदि डिमांड कमुची ताले inferior good. So income बढ़ले जदि डिमांड कमुची ताले inferior good. Fine. See, Engels curve with respect to normal goods, एंगल कर्व रो शेप टा with respect to normal good केमती हबो? अपवर्ड स्लोपिंग।
upward sloping. That means suppose income is I0, income होची केते I0 and the quantity is Q0. जेतला आपण इनकम थिला I0 आपण केते क्वांटिटी डिमांड करछंदी Q0. यदि इनकम बढ़ी जाउची, इनकम बढ़ी की हे जाउची I1, then your quantity demand increases to Q1. Fine. That means in case of normal goods, the shape of angle curve is upward sloping from left to right angle curve. बुझ पाछंती? Similarly, with respect to inferior goods, what would be the shape of angle curve? Downward sloping hobo. Kahinki? Because why downward sloping? Let's say this was your income. I0 was your income and you are demanding Q0 of quantity. When income was I0, जेतले income थिला आपण माने इंग्लिश बुझ पाछन तो फाइन ओडिया रे कोइ इनकम थिला I0, क्वांटिटी केते Q0. सपोज इनकम कमी गला, इनकम जदि कमी गला I1 हे गला तले क्वांटिटी कोन होची एठी? क्वांटिटी कोन होची? क्वांटिटी बढ़ुची Q1 हे गला. एबे उल्टा देखंतु I1 थिला आपन इनकम आपन केते डिमांड करथुले Q1. इनकम आपन बॉडी केते हे गला I0, डिमांड कोन हे गला कमी गला केते को Q0. So there is what? In case of inferior goods, the angle curve is downward sloping from left to right. बुझ पारले? These are the things. Okay, next question कोन अछि? What is the next question? What is the next question? See next question, third. Okay, in order to arrive at the market price of the product, which of the following are added to the factor cost of the product? In order to arrive at the market price of the product, which of the following are added to the factor cost of the product? तो यार आंसर कौन होगा? Which is the answer? एटा भी हम डिस्कस करथिले. प्राय मु देखुतली जहा हमें क्वेश्चंस आछि प्राय डिस्कस करछे हमें क्लास रे. प्राय डिस्कस करछे. जोड़ा डिस्कस करनी सेटा अलग कथा किंतु जहा जो क्वेश्चंस आछि प्राय डिस्कस हमें क्लास डिस्कस कवर करथिले. ओके कोन होबा आंसर? मार्केट प्राइस को बाहर करिवा पई, in order to derive market price. So in order to arrive at the market price of the product, which of the following are added to the factor cost of the product? कौन थिला फॉर्मूला? प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी. ताले अभी तो आंसर कोटा हबो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. दैट इज टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस. देखो यार कौन see market price is equal to factor cost plus what kind of tax? Total indirect taxes. Indirect taxes minus total subsidies. Class रे में डिस्कस करथिले एटा. Market price is equal to factor cost plus total indirect taxes minus total subsidies. किछि आपण लिखंतु नहीं, सब नोट रे अछि, सब नोट रे अछि. कोन सब नोट रे अछि, बुझि पले आपण नोट देखंतु. अच्छा एठी देखंतु आको ब्रेक करंतु. Total indirect taxes is consists of what? Total indirect taxes is comprised of what? Total indirect taxes is comprised of what? कहितले हम डिस्कस करथिले क्लास रे. Market price is equal to factor cost plus total indirect taxes is comprised of production tax plus product tax, including together they are called as total indirect taxes. Fine. And minus total subsidies. Now break down the total subsidies consists of what? Production, subsidy,
plus product subsidy, product subsidy, product subsidy. This is your answer. So market price हमको derive करिवार अछि ताले हमको फैक्टर कॉस्ट रे कोन करिया पड़िबो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करिया पड़िबो एंड टोटल सब्सिडीज कोन करिया पड़िबो सब्सट्रैक्ट करिया पड़िबो बुझि परले। अच्छा जदी हमको फैक्टर कॉस्ट बाहर करिया ताले कोन करिया पड़िबो इफ यू वांट टू अराइव एट फैक्टर कॉस्ट देन व्हाट यू हैव टू डू market price minus total indirect taxes plus total subsidies fine। अच्छा जदि बेसिक प्राइस काढिया ताले कोन हो किमित भारियो ताले जदि बेसिक प्राइस काढियो आपण भी नथिले सेते बेलको आपण भी नथिले सेते बेलको आपण भी नथिले किंतु आपण भी थिले आपण भी नथिले ओके। तो जदि हम बेसिक प्राइस काढियो ताले कोन किमित भारियो बेसिक प्राइस हाउ द बेसिक प्राइस हाउ कैन वी डिराइव द बेसिक प्राइस सी बेसिक प्राइस आपण बेसिक प्राइस जदि काढिबार अछि बेसिक प्राइस ताले कोन करिया पड़ियो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट जदि आपण केवल प्रोडक्शन टैक्स ऐड करूचंती आ प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करूचंती ताले आपण कोन पाइबे बेसिक प्राइस बुझ परले। तो बेसिक प्राइस रु आपण जदि मार्केट प्राइस डिराइव करिवे ताले केमिति करिवे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी बुझी पाले ना बुझी पाले फाइन ओके फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन 100टा क्वेश्चन अछि जल्दी डिस्कस करियो न सॉरी होनी हबनी ना ठीक है जति हबो जति करियो प्राय क्वेश्चन तो आपको आम पढ़ नी क्लास प्राय सब कवर कर देखिए प्राय नोट्स अच्छी बुझिपारे ना मुझे देखुली क्वेश्चंस ओके। अनएम्प्लॉयमेंट तो आम देखा आगु और चैप्टर कंप्लीट करने। सो अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड what would be the answer what is the answer B disguised unemployment कौन है क्वेश्चन माने बुझ पउछंती अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड देखो या माने भी बुझंत ठीक अछि हमें पढियो जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ओके। सी सपोज सी हियर सपोज आपन पर गोटे 1 एकड़ लैंड अछि 1 एकड़ लैंड ये 1 एकड़ लैंड रे आपन मैक्सिमम केते प्रोड्यूस करि परिबे ये 1 एकड़ लैंड रे आपन मैक्सिमम केते प्रोड्यूस करि परिबे लेट्स से 100 kg ऑफ व्हीट आपन मैक्सिमम प्रोड्यूस करि परिबे फाइन 100 लैंड रे गिवन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बुझबन कोन कहू छी गिवन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस इज 100 kg व्हीट। अच्छा 100 kg व्हीट को केते लोक काम करी प्रोड्यूस करछंती फॉर एग्जांपल 5 वर्कर्स 5टा लेबर अछंती जे 1 एकड़ लैंड रे काम करूछंती से केते मैक्सिमम केते प्रोड्यूस करछंती 100 kg ए लैंड ता मैक्सिमम केते प्रोड्यूस करि परिबो गिवन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी 100 kg फाइन। अच्छा सपोज आई ऐड अनदर 5 वर्कर्स एबे मैक्सिमम केते प्रोड्यूस हे परिबो 100 kg किंतु वर्कर्स केते अछंती 10 वर्कर्स किंतु 100 kg केतरा वर्कर्स प्रोड्यूस करि परिबे 5 तामन जे एक्स्ट्रा 5 मु ऐड करली दे सीम टू बी वर्किंग एमिति लागुची बाहरु देखले लागुची कोन से माने काम करूचंती बट व्हाट इज देयर प्रोडक्टिविटी से माने केते प्रोड्यूस करचंती 0 बुझ परले। सपोज ये जो 5टा वर्कर काम करथले अंगर पर लेबर प्रोडक्टिविटी केते 5टा वर्कर प्रोड्यूस करथले केते 100 kg वेट ताले पर लेबर केते प्रोड्यूस करथले 20 100 अपॉन 5 20 kg पर लेबर फाइन बुझ परले। अच्छा एबे जब हमें 5टा ऐड करले एई 5टा मिसिक तो 100 kg वेट प्रोड्यूस करचंती ताले एई जो एक्स्ट्रा ऐड करले 5टा से मानकर प्रोडक्टिविटी केते 0 बुझ परले किंतु जदि हमें पर लेबर प्रोडक्टिविटी जदि बाहर करियो ताले केते आसीबो 10 kg बिकॉज़ 100 kg अपॉन 10
किंतु एक्चुअली से प्रोड्यूस केते करछंती जीरो बुझिपारे कहीं ये पांचटा ये पांच जन न रहिले भी ये पांच जन मिसिकी 100 केजी वेट प्रोड्यूस करि परिबे दैट मीन्स इट सीम्स दीज एडिशनल 5 वर्कर्स आर वर्किंग एमती देखिले लागुची जे सेमान कोन काम करूचंती बट देयर प्रोडक्टिविटी इज जीरो मीनिंग दिस इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड मान देखा जाऊ नाहंती अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउनी बाहर देखिले लागुची कोन 10 जन जाक काम करूचंती फील्ड रे किंतु एक्चुअली रे 5 जन कोन एटी अनएम्प्लॉयड अछंती बुझिपारले एंड दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बुझिपारछंती एंड कहि परियो यार इंप्लिकेशंस कोन होबो व्हाट कुड बी द इंप्लिकेशंस लो वेजेस हाउ तो आगुरु गोटे पर वर्कर केते मिलुतला 20 केजी बुझिपारले से केते बिक्री करियो मार्केट 20 केजी तो 20 केजी हिसाब रे से पाइबो तार जहां भी अछि बुझिपारले एबे केते बिक्री करियो 10 केजी 10 के हिसाब रे पाइबो सो ता माने कोन लो वेजेस बुझिपारले लो वेजेस लीड्स टू एन increasing risk of poverty बुझिपारले increasing risk of poverty and there are many other implications of disguised unemployment fine wastage of labor wastage हो वेस्ट होछि ना लेबर ता ये पांच जन के काम करे कोन दरकार कहीं ना ये पांच जन काम न करली 100 केजी वेट प्रोड्यूस करिया हमें बुझिपारले वेस्टेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल बुझिपारले देयर आर मेनी अदर implications fine okay this is called actually जो मु कहली पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज जीरो दैट होछि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जोटा कि आपण हम देखियो सेतो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जे स्व इच्छा रे हम पढियो अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क डिटेल पढियो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट व्हाट मीन क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट नारु कोन जणा पड़छि क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मींस सीवियर और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मींस सीवियर और what do you mean chronic unemployment chronic means long term unemployment not severe this is a general misconception chronic माने होछि कोन long term unemployment fine long term बुझिपले देखियो हम देखियो अनएम्प्लॉयमेंट डिटेल दे दियो ओके कंसीडर सी दिस क्वेश्चन consider the following situations in an economy demand pull inflation क्लास डिस्कस करथले so what would be the answer surge in exports demand pull inflation केतबेले हो म कहितले demand pull inflation केतबेले हो जेतेबेले लोकन हाथ को बेसी पैसा आसीबो लोक माने बेसी डिमांड करिवे आ डिमांड बढ़िवा जको प्राइस कोन हो बढ़िबो ता माने इन्फ्लेशन होबो ताल डिमांड पुल इन्फ्लेशन जदी इंडिया रे एक्सपोर्ट्स बढ़ुची इंडिया रे जदी एक्सपोर्ट्स बढ़ुची इंडियंस माने बेसी अर्न करूचंती बेसी अर्न कला माने बेसी पैसा हाथ को आसीबो बेसी पैसा हाथ को आसला माने बेसी डिमांड करिवे सो व्हाट विल हैपन टू इन्फ्लेशन व्हाट विल हैपन टू डिमांड व्हाट विल हैपन टू इन्फ्लेशन will increase second increased government spending on large scale projects जदी गवर्नमेंट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स रे बेसी जदी इन्वेस्ट करूची तार लोक को हायर करिवो ना करिवोनी लोक जदी हायर करिवो लोक मान इनकम बढ़िवो ना बढ़िवोनी इनकम बढ़ला माने लोक हाथ पैसा आसीबो ना आसीबोनी लोक हाथ पैसा आसले डिमांड कोन होबो बढ़िवो जा द्वारा कि प्राइसेस विल इंक्रीज एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हला माने इनकम बढ़िवो ना बढ़िवोनी लोकंगर इनकम बढ़ला माने डिमांड भी बढ़िवो लीडिंग टू हाई inflation that is called demand pull inflation so all three is the answer now see 6 in the context of functions of the central bank the reserve bank of India carries out sterilization it actually हमें काली ही पढ़िबा बुझि पड़ला तो sterilization so actually the answer is this stabilize the stock of money in the economy from external shocks so what do you mean by this ये माने कोन हां कल देखि दवा ओके स्टेरिलाइजेशन एक्चुअली एटा होए कोन की देखो स्टेरिलाइजेशन का ब्रीफली कहि दो स्टेरिलाइजेशन सुनो सपोज अच्छा जदी इकोनॉमी रे मनी सप्लाई जदी बढ़िला मनी सप्लाई जदी बढ़िबो किछि गोटे कांसेप्ट अछि हाई पावर्ड मनी मनी मल्टीप्लायर ऐसे कांसेप्ट किछि अछि जदी इकोनॉमी रे मनी सप्लाई जदी बढ़िबो ताहले व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें प्रीवियस क्लास रे गोटे कांसेप्ट कहितली एमवी इज इक्वल टू पीवाई एमवी इज इक्वल टू पीवाई बुझिछन सेटा बुझिथिले एमवी इज इक्वल टू पीवाई मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट हां सेही कांसेप्ट ऊपर ही एटा बेस है कि अछि देखंतु स्टेरिलाइजेशन सपोज ओके सी कांसेप्ट्स हाईली टेक्निकल कांसेप्ट्स सपोज गोटे फॉरेनर इंडिया को आसिला $1 बिलियन इन्वेस्ट करिया को चाहूची $1 बिलियन इंडिया रे इन्वेस्ट करिया को चाहूची बुझि परले गोटे फॉरेनर इंडिया रे $1 बिलियन इन्वेस्ट करिया को चाहूची फाइन ताहले
से डॉलर को नहीं इन्वेस्ट करि परिबो इंडिया रे ताले कोथर करिया पड़िबो रुपी रे करिया पड़िबो ता से फॉरेनर कोन करिवो ए 1 बिलियन डॉलर नहीं कि जीवो का पाखु रिजर्व बैंक पाखु जानतनी का पाखु जानती कौन कौन मु कहितली हु डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी तां कौन कहा जाए प्रीवियस क्लास रे मु कहितली जो माने फॉरेन एक्सचेंज रे डील करंती तां कौन कहा जाए प्राइमरी डीलर्स कहितली ना कहितली प्राइमरी डीलर्स ना ऑथराइज्ड डीलर्स देखिए बुझ पारले अच्छा एमान जे कि सब क्लास रे पढ़ी बुझ पारले कहि ओके 1 बिलियन डॉलर्स नहीं कि फॉरेन आसला इंडिया को सी कौन कला सपोज एसबीआई पाखु गला एसबीआई को दे देला केते 1 बिलियन डॉलर एसबीआई कौन करिवो ए 1 बिलियन डॉलर नहीं कि आरबीआई को दे देबो बुझ पारछंती अच्छा ताहले जो फॉरेनर 1 बिलियन डॉलर नहीं कि आसी इंडिया को सी कौन रुपी रे इन्वेस्ट करिवो तब कौन दरकार रुपी रुपी इक्विवेलेंट ऑफ 1 बिलियन डॉलर्स ताले 1 बिलियन डॉलर्स को जदि हम रुपी रे कन्वर्ट करिवे केते होबो 1 बिलियन डॉलर्स को जदि हम रुपी रे कन्वर्ट करिवे केते होबो इज इक्वल टू 8500 crores 8500 8500 कोटी बुझ पारले तो बैंक कौन करिवो ये 1 बिलियन डॉलर काहा को दे देबो आरबीआई को ताले आरबीआई को बर्तमान कौन दबा पड़ियो आ बैंक को 8500 crores दबा को पड़ियो ताले आरबीआई कोठु दबो आरबीआई कोठु दबो हम पढ़थिले इकोनॉमिक आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पढ़नथिले सेते दुटा कांसेप्ट थिला कोन थिला रिजर्व्स ऑफ आरबीआई आरबीआई रिजर्व्स थिला बुझ पारले से रिजर्व्स रु काढी के दबो काहा को बैंक को दबो आरबीआई बुझ पारले अच्छा ता माने वर्तमान इकोनॉमी रे केते न्यू मनी इंजेक्ट हला 8500 crores इंजेक्ट हला ता माने लोकन हाथ को वर्तमान एक्स्ट्रा एडिशनल 8500 crores आसला ना आसला ना सो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी व्हाट विल हैपन टू डिमांड विल इंक्रीज and increasing demand will lead to what inflation बुझ पारले and so as to curb this type of inflation what RBI do is RBI sells sterilization bonds या कुआ जाए sterilization bonds मार्केट रे सेल कौन करिवो RBI मार्केट रे sterilization bonds बिक्री करिवो so as to observe this additional supply of money into the economy ए 8500 कोटी जो इन्फ्लेशन हबार संभावना अच्छी से आरबीआई कौन करिवो स्टेरिलाइजेशन बॉन्ड सेल करिवो मार्केट रे जहा द्वारा कि आरबीआई ए जो 8500 कोटी जो न्यू मनी इंजेक्ट हेछि इकोनॉमी रे ताको एब्जॉर्ब करनो बुझ पाल ना ता माने व्हाट विल हैपन टू मनी सप्लाई कोन हे जो मनी सप्लाई जहा थिला आगरु सियाई हे जिवो एंड कर्विंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बुझ पाल ना दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन ओके स्टेरिलाइजेशन हां No, not forcefully नुहे बिक्री करियो किन गवर्नमेंट बॉन्ड ना बुझ पाले गवर्नमेंट बॉन्ड पीपल आर ईगर टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉट फोर्सफुली को केस रे अपन कहि परिबे एसएलआर केस रे ही गवर्नमेंट फोर्स करे बैंक्स को यू हैव टू परचेज दिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स बुझ पाले ओके ओके So 7, please tell me what is which of the following statement best describes the head count ratio? This is poverty. Head count ratio is the concept related to what? Poverty. What do you mean by head count ratio? Head count ratio simply means what? The percentage of people poor in the country. Percentage of people or the proportion of the population who are poor in the country, who are below the poverty line, the percentage of people who are below poverty line in the country. For example देखो बुझ परिबे example see suppose इंडिया रे पॉपुलेशन होची 2000 माने इंडिया रे केते लोक अछंती 2000 लोक अछंती फाइन हमकु प्रथमे गोटे पोवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट करिवा को पड़िबो व्हाट डू यू मीन पोवर्टी लाइन केमति कंस्ट्रक्ट करा जाए poverty line could either be constructed based on income based poverty line or it could be poverty line could be constructed on the basis of consumption expenditure or the poverty line could be constructed on the basis of wealth across the world consumption expenditure is used for the purpose of constructing poverty line एटा एक्चुअली कोन पढिया पोवर्टी रे वर्तमान बुझंतु इनकम को नेकी बुझंतु सपोज 2000 लोक अछंती
आम गोटे पोवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट कले कहले जे जो लोकर इनकम मासकू 1000 टंका कम, जो लोकर इनकम मासकू 1000 टंका कम, दैट पर्सन इज पोअर पर्सन इन द कंट्री। कौन कहले आम गोटे पोवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट करदे। पोवर्टी लाइन बर्तमान कौन है? पोवर्टी लाइन बर्तमान कौन? मु कहली जो लोकर इनकम मासकू 1000 टंका कम, दैट पर्सन इज, से लोक हूँ गरीब लोक देश में। ताले पोवर्टी लाइन कौन है आमर? पोवर्टी लाइन इज 1000 रुपीज पर मंथ, बुझिपारे? पोवर्टी लाइन इज 1000 रुपीज पर मंथ। ता माने 1000 टंका तलू जी इनकम कर मासको इंडिया रे, से माने कौन? गरीब। सपोज अच्छा केते लोक आम इंडिया रे? 2000 लोक। 2000 लोक भितर सपोज 500 लोक एमती अच्छा जो मान इनकम कौन? 1000 टंका कम, जो मान इनकम हूँ 1000 टंका कम, बुझिपारे? ताहले केते परसेंट लोक इंडिया रे गरीब? 2000 लोक अच्छा इंडिया रे गरीब लोक अच्छा 500, ताले केते परसेंट लोक इंडिया रे गरीब अच्छा? केते परसेंट? 25%। केम जाना पड़ला? व्हाट इज 500? number of people poor in the country. So number of people who are poor upon total population into 100 kete 25%. This 25% is head count ratio. This 25% is head count ratio. That mane kon? Ta mane out of total population 25% people are actually below poverty line. ताने 25% लोक एमती अच्छा देश में जो मान इनकम मासक कौन 1000 टंका कम। दिस इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। किंतु अक्रॉस द वर्ल्ड पोवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बुझी पारछ ना? बुझी पाना? दिस इज हेड काउंट रेशियो। फाइन, हेड काउंट रेशियो। सो आप हेड काउंट रेशियो ताले कौन हम यहाँ कौटा आंसर हम हेड काउंट रेशियो? हाँ कौटा हम आंसर? It is the percentage of unemployed population in the country, right? It is the percentage of population living below the national poverty line. It is the measure of the dropout ratio from school education. ताले कौटा हम आंसर हम? B is the right answer. बुझ पड़ले? It is the percentage of the population living below the national poverty line. जदि पोवर्टी लाइन को जदि इनकम को नहीं कि पोवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट कराई ताले से इनकम तल को जेते लोक अच्छे से माने कौन एक्चुअली गरीब परसेंटेज बाहर करदेले कौन? दैट इज आवर हेड काउंट रेशियो। बुझिपारुछन्ते? फाइन। सो 8 इज a decision of the RBI to increase the cash reserve ratio is most likely to result in what? cash reserve ratio मु आपन तो पढ़ेनी cash reserve ratio किंतु किसी आइडिया तो थिबो। मु डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ला बेलू cash reserve ratio विषय किसी कहितली। बुझि पारले? So कौन हो एटा? A decision of the RBI of India RBI to increase the cash reserve ratio is most likely to result in an increase in inflation rate. कौन हो? अच्छा सीआर हाउ ठीक अछि मु खाली गोटे ब्रीफली टे कहि दउ अपन देखन देखन सी सपोज मु जाई कि बैंक रे 1000 टंका डिपॉजिट करली। मु जाई कि बैंक रे 1000 टंका डिपॉजिट करली। फाइन। ताले मु जदि आज डिपॉजिट करछि काली जाई किछि अमाउंट विथड्रॉ भी तो करिवि। सपोज टंके 2 टंका 3 टंका विथड्रॉ तो करी प्रतिदिन किछि किछि पैसा। बुझि पारले? मु 1000 टंका जाई कि बैंक डिपॉजिट करछि ताले बैंक रो बिजनेस कोन मोठू डिपॉजिट एक्सेप्ट करिवो आ सेही पैसाटा को लोकन कोन लोन रे दबो। सिंपल रो कहूछि लोक मानंटू पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करे बैंक आ सेही पैसाटा को लोक मानन कोन बैंक लोन रे दिए। किंतु सपोज जदि मु 1000 टंका नहीं कि बैंक रे डिपॉजिट करली आ बैंक एंटायर 1000 टंका को जदि लोन रे दे देला आ जदि काली मु जदि विथड्रॉ करिया को गली ताले बैंक पर पैसा अछि म देबा पे नाही ना पैसा। तो आरबीआई कोन करछि? आरबीआई बैंक मानन कहिछि तमे डिपॉजिट रो एंटायर अमाउंट लोन रे दे परिबो नाही। ये जो डिपॉजिट हेछि यार किछि पोर्शन तमे मो पाकर रखिया को बाध्य इन द फॉर्म ऑफ कैश। बुझि पारले? ये जो डिपॉजिट हेछि मु डिपॉजिट करछि
1000 ता माने पब्लिक केते डिपॉजिट करछि एठी 1000 तले आरबीआई कहिछि जे ये जो पब्लिक डिपॉजिट अछि ए पब्लिक डिपॉजिट रो किछि पोर्शन बैंक्स माने आरबीआई पाखरे रखिबा को बाध्य कैश फॉर्म रे सपोज आरबीआई कहला टोटल पब्लिक डिपॉजिट रो 4% टोटल पब्लिक डिपॉजिट रो केते 4% आरबीआई कहूँ बैंक्स मान 4% मो पाखे आपण रखा बाध्य बुझिपारे ताने हजार रु केते टंका बैंक्स माने आरबीआई पाखे रखिए रिजर्व 40 टका 40 रुपीज ए 40 रुपीज बैंक्स माने कौन करेंगे आरबीआई पाखे रिजर्व रखिए इन द फॉर्म ऑफ व्हाट कैश कैश रखिए बुझिपारे एटा ही हूँ आपण कौन सीआरआर एटा ही हूँ सीआरआर ता माने बैंक्स मान पाखे केते टंका बळिला लोन रे देबा पई बैंक 1000 टका को लोन दे पारिबो कि दे पारिबो नाही ता भीतर केते टका रखिया पड़िबो आरबीआई पाखरे 4% दैट इज 40 रुपीस ताले बैंक्स पाखरे आउ केते टका अछि लोन रे पैसा देबा पई 960 ता माने बैंक वर्तमान 960 को नेकी बिजनेस करिवो यार एसएलआर भी अछि काल देखियो हेटा वर्तमान 960 की नै कोन बिजनेस करिवो बैंक फाइन अच्छा बैंक ताले ए 40 रुपीस जते आरबीआई पाखरे रखि देउची ताले एटा गोटे बैंक पे गोटे प्रकार लॉस ना नुहे एटा कहीं बैंक ये 40 टका को लेकिन बिजनेस कर पारनी बैंक के टका को लेकिन बिजनेस करुच्ची 960 रुपीज बुझिपारे तो बैंक ये टका को लेकिन बिजनेस कर पारनी टाइप काइंड ऑफ लॉस फॉर बैंक्स बुझिपारुछन्ती फाइन अच्छा जदि बैंक ये 960 को जदि लोन रे दे दउची ता माने लोक हाथ को पैसा आछी लोक हाथ जदि पैसा आसीबो ताले डिमांड व्हाट विल हैपन टू डिमांड विल इंक्रीज when demand increase what will happen to price what will happen to rate of inflation in the economy it will increase fine जदि आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवार अछि if RBI wants to control the rate of inflation in the economy ताहले सीआरआर आरबीआई बढ़ेबो ना कमेबो कहीं जिते बेसी पैसा पब्लिक को जीवो सेते डिमांड करिवे सेते इन्फ्लेशन बढ़िबो if RBI wants to control inflation ताहले सीआरआर आरबीआई बढ़ेबो ना कमेबो बढ़ेबो ना सपोज मु सीआरआर बढ़ई करदेली 10% सीआर बर्तमान बढ़ई करदेली कौन 10% फाइन 10% ताने बैंक्स मान पाखरे आ केते टका बढ़ला फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग लोन्स केते 900 बढ़ला ता माने बैंक्स पाखरे सप्लाई कमी गला यदि बैंक्स मान पाखरे सप्लाई कमिला व्हाट विल हैपन टू इंटरेस्ट रेट्स बर्तमान जेतु सप्लाई थिला केते 960 एबे सप्लाई कमी केते हे गला 900 ता माने बैंक बर्तमान हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देबे ना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देबे high rate of interest so interest rates actually increase in the economy interest rate बढ़िबो ना बुझि पारले सप्लाई बेसी थिला बुझि पारले तो सप्लाई बेसी थिबारो आ बैंक्स माने कोन करथले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दोथले एबे सप्लाई कमी गला डिमांड बेसी अछि सप्लाई कमी गला डिमांड बेसी अछि मार्केट रे लोन पे बेसी डिमांड अछि किंतु लोन रो सप्लाई कमी जाइछि बुझि पारले तो आरबीआई वर्तमान इंटरेस्ट रेट को बढ़ेबो ना कमेबो बढ़ेबो ना सेटा ही क्वेश्चन रे पचारछि कोन पचारछि क्वेश्चन कोन पचारछि a decision of the RBI to increase cash reserve ratio is most likely to result in what increase in the interest rates केमिति बढ़िबो बुझि पारले फाइन ओके कंसीडर द p notes हम देखिबा मनी मार्केट कैपिटल मार्केट रे देखिबा p notes okay to obtain personal disposable income which of the following should be deducted from personal income में हम डिस्कस करथले नेशनल इनकम रे यार आंसर कोन हो हां ओनली टैक्स पेमेंट्स हो the answer is both tax payments and non tax payments that is 1 and 2 see देखो personal income रो फार्मूला कोन व्हाट इज द फार्मूला टू डिराइव पर्सनल इनकम सी नोट्स रे थिला एटा नोट्स रे अछि नेशनल इनकम नोट्स रे अछि बुझि पारले पूरा एकदम लिखि छी पर्सनल इनकम हाउ डू यू डिराइव पर्सनल इनकम नेशनल इनकम रो जदि आपण माइनस करिवे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स plus corporate tax plus net interests
नेट इंटरेस्ट पेड नेशनल इनकम रो ये सब माइनस करेंगे प्लस कौन करेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स बोथ बाय गवर्नमेंट एंड फर्म मु बुझेइतिल डिटेल रे आ डिटेल जाउन डिटेल बर्तमान बहुत समय नहीं जीवो एटा पर्सनल इनकम केमु डिराइव हो व्हेन यू सब्सट्रैक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट टैक्स एंड नेट इंटरेस्ट पेड फ्रॉम नेशनल इनकम एंड यू ऐड व्हाट ट्रांसफर पेमेंट्स आपन कोन भारिबो पर्सनल इनकम बुझ परले तो आपन पर्सनल इनकम ताले हाथ केते आसला सपोज आपन हाथ को आसला इनकम सपोज आपन हाथ को आसला इनकम 1 लाख रुपीस 1 लाख टा होची आपन को पर्सनल इनकम दिस इज योर पर्सनल इनकम फाइन दिस इज योर पर्सनल इनकम ताले पर्सनल इनकम रो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम केम बाहर करिवे ताले ये जो 1 लाख इनकम आपन पर्सनल इनकम ये 1 लाख भितरु आपन को पाखरे डिस्पोज करिया पे केते टंका पड़िबो केते टंका अछि आपन पाइले इनकम केते लाख टंका इनकम पाइले बुझ परले किंतु ये लाख टंका इनकम आपन हाथ को आसीबो कि कोन केते हाथ को आसीबो ताले टैक्स दबाव पड़ियो सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्स पेमेंट्स आपन इनकम टैक्स पे करिवे बुझ परले ताकू छाड़ देले माइनस कोन जदि आपन को ऊपर गवर्नमेंट किसी पेनल्टी लगेई छि किंबा आपन किसी फीस दउचंदी गवर्नमेंट को कोन सी पर्पस पई ताले सेटा भी माइनस करिवे फीस फाइन्स एटसेट्रा बुझ परले ता माने टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स ताले कोन भारी आपन को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बुझ परले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि next question let's see what is the next question with reference to inflation consider the following statements mate kohondu eta apan kohondu with reference to inflation consider the following statements deflation is the decrease in the level of inflation right or wrong inflation bolku bhi apna asnathile bode nahi okay deflation is a decrease in the level of inflation right or wrong and disinflation is a general decline in prices for goods and services सब क्लास रे सब डिस्कस करछि हां टू ओनली both are wrong एटा होची डिफ्लेशन एटा होची डिसइनफ्लेशन बुझ परले उल्टा देछि जो लिखा है जी डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज डिसइनफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन डिसइनफ्लेशन वेयर डिफ्लेशन इज अ जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जेतेबेले जिंस गुडाकर दरदाम कमे ता कोन को जाय डिफ्लेशन डिसइनफ्लेशन नुहे एटा होची कोन डिफ्लेशन एटा कोन डिसइनफ्लेशन माने कोन नो 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 इन्फ्लेशन माने कोन बढ़िबा प्राइस बढ़िबा इन्फ्लेशन ऑपोजिट कोन हो प्राइस कमिया माने कोन ता कोन को जाय डिफ्लेशन बुझ परले कि डिफ्लेशन होची एटा जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट इज डिसइनफ्लेशन डिसइनफ्लेशन इज reduction in the rate of inflation reduction in the level of prices in the level of inflation or reduction in the rate of inflation ता माने देखो ता माने होची सपोज प्राइस बढ़ुची प्राइस बढ़िला सपोज 1% बढ़ला तापर से 2% बढ़ला बुझ परले तापर 5% बढ़ला तापर 15% बढ़िला तापर 45% बढ़ला ता माने रेट ऑफ इन्फ्लेशन कोन चलची ठीक बड़ी चलची ना चलनी एटा आपको कौन थी इन्फ्लेशन डिसइनफ्लेशन कौन डिसइनफ्लेशन माने होची डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ता माने वर्तमान केते परसेंट बड़ी चलची इन्फ्लेशन 45% रे तापर डिक्रीज करिवो आसला 30% को कमी गला केते रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30% तापर आसला सपोज 25% तापर आसला सपोज 20% डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिसइनफ्लेशन प्राइस बढ़ुची किंतु जो रेट रे बढ़ुतला से रेट ता कोन करूची वर्तमान डिक्रीज करूची दैट इज कॉल्ड एज disinflation बुझी परले ओके ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीडीपी डिफ्लेटर में हम पढ़ते कौन अछि जीडीपी इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नो अभी तो कोड राइट हो आंसर इज ओनली वन कैलकुलेट करे हमरो एटा जीडीपी डिफ्लेटर एटा होची मॉस्पी
Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, MOSPI, not Ministry of Finance. Not Ministry of Finance. Okay. या माने बुझुछन बुझुछन जीडीपी डिफ्लेटर माने बुझी पाउछन कोन जीडीपी डिफ्लेटर कोन होछ एक्चुअली व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर नोट्स अच्छी जीडीपी डिफ्लेटर हम क्लास में डिस्कस करते जीडीपी डिफ्लेटर व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 माने कोन रियल जीडीपी मने अच्छी नॉमिनल जीडीपी मने अच्छी मन नहीं हाँ सेटा भूली जंदी अच्छा हो तामाने जीडीपी डिफ्लेटर कहूची कोन एक्चुअली प्राइसेस केते बढ़ी इकोनॉमी रे सब गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस केते बढ़ी सब गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस एक्चुअली केते बढ़ी सेटा ही दिखौची कोन जीडीपी डिफ्लेटर आप सेटा देखौची जीडीपी डिफ्लेटर शोज what is the level of increase in prices of all goods and services in the economy. What is the formula? Formula is nominal GDP upon real GDP into 100. Suppose nominal GDP अपन suppose nominal GDP होची अपन अपन सब भूली जाइछन नै so nominal GDP upon real GDP into 100. यदि आम सपोज नॉमिनल जीडीपी होची 500 नॉमिनल जीडीपी सपोज आमर 1000 रियल जीडीपी लेट्स से 500 into 100 केते आसीबो एटा केते आसीबो 200 बुझी परले 200 माने कोन ता माने बेस थिला 100 आउ ऑन द टॉप ऑफ दैट प्राइसेस केते परसेंट बढ़ी 100% ता माने प्राइसेस केते बढ़ी डबल हो जाई प्राइस माने कंपेयर टू बेस ईयर the prices has doubled in the current year एटा ही शो करछु कोन जीडीपी डिफ्लेटर डिस्कस तो करथले डिटेल आउ डिटेल जीवानी बुझ परले टाइम है जो ओके नेक्स्ट सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटा हम डिस्कस करथले ऑब्जेक्टिव्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ensuring adequate flow of credit to productive sectors of the economy right or wrong yes it is right right maintaining financial stability right to facilitate external trade yes correct and to give public an adequate quantity supply of coins all are right fine RBI supply coins government supply करे नहीं तो आंसर कौन होगा यार yes government supplies the coins so what would be the answer 1 2 3 okay answer is 1 2 3 sorry extremely sorry answer is 1 2 3 answer is 1 2 3 answer is 1 2 3 मन रखछन coins की supply करे ताले government actually government supplies the coins answer is 1 2 3 fine हां कोना कोना ओहो अच्छा अच्छा ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं देखो सी शुणु मो कथा ध्यान से आंसर 1 2 3 हम करेक्ट आंसर इटा भी राइट आप भावुन किंतु स्टेटमेंट 4 टिके पढ़ंतु टू गिव द पब्लिक एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉइन्स ओके प्रिंट करियो दायित्व मिंट कॉइन्स को मिंट करियो दायित्व कार गवर्नमेंट रो सप्लाई करियो दायित्व कार आरबीआई रो ताले आंसर कोन होबो एट भाबुछन आपण आंसर कोन होबो 1 2 3 एंड 4 आंसर इज ऑल आर करेक्ट बुझ परले सप्लाई ऑफ कॉइन्स सप्लाई की करियो आरबीआई ही करियो ना तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द आरबीआई टू गिव पब्लिक एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉइन्स किंतु कॉइन्स को मिंट करियो रिस्पांसिबिलिटी कार का पाखरे अछि गवर्नमेंट पाखरे बुझ परले ओके आंसर इज डी फाइन in the context of monetary policy which of the following are qualitative tools used by the reserve bank of india एटा भी डिस्कस करथले हम एटा हम डिस्कस करथले इन्फ्लेशन चैप्टर ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करथले व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन हो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मोरल सुएशन एंड चेंजिंग द एसएलआर इज क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फाइन जोटा हम कल देखियो
फाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी डेफिसिट एटा भी डिस्कस करथले क्लास रे प्राइमरी डेफिसिट हम डिस्कस करथले प्राइमरी डेफिसिट हां तले कोटा हबो आंसर primary deficit. It is the fiscal deficit of the current year minus interest payments on previous borrowings. Fine. Primary deficit. Fine. 16 का something. Consider the following statements. A shift from এটা poverty. এটা poverty ର chapter ଟା এটা ଆମେ ଦେଖିବା poverty ରେ. Actually the answer is all four are correct. Principal, a shift away from calorie consumption based poverty estimation, yes, true. A uniform poverty line basket across rural and urban India, true. A change in the price adjustment procedure to correct spatial and temporal issues with price adjustment, correct. And incorporation of private expenditure on health and education while estimating poverty, also correct. All four are correct. All four are correct. It actually कौन हम डिस्कस करिए poverty रे, fine. Okay. बेजल नॉर्म्स आसो मॉनेटरी पॉलिसी पर ही बेजल नॉर्म्स जोटा कि क्वाइट इंपोर्टेंट प्राय स्टूडेंट्स माने बुझी पारंतनी बेजल नॉर्म्स कौन बुझी पारले आर आंसर होची इंप्रूविंग ए आंसर होची इंप्रूविंग द banking sector's ability to absorb shocks arising from financial stress. What are Basel norms? What are NPAs? बुझ पारलम what are doubtful assets? What are stressed assets? What do you mean by what तो सब हम डिस्कस करिए बैंकिंग फाइन ओके आंसर इज दिस इंप्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस फाइन बैंकिंग सब डिस्कस करिए consider the following statements with reference to different measures of money supply in India. All the measures of money supply among M4 is the most liquid, M1 is the mostly used measure of money supply and is known as aggregate monetary resources. No. Among all the measures of money supply, M4 is most liquid. Wrong. The first statement is wrong. This is a wrong statement. M1 is the most commonly used measure of money supply and is known as aggregate monetary resource. This is also wrong. So neither one nor two. Neither one nor two. There are four different measures of money supply. There are four different measures of money supply. जो banking रे देखियो M1, M2, M3, M4. There are four different measures of money supply. Out of these four different measures of money supply, M1 is the most liquid. M1 is the most liquid, whereas the least liquid is M4. So it can't be M4. M4 is the most liquid, which is a wrong statement. Whereas which is the most liquid? M1. M1 the कौन देखिएगा. That means M1, M2, M3, M4. They are in decreasing order of liquidity. They are in decreasing order of liquidity. Most liquid is M1. Then next liquid is M2. Then next is M3, and least liquid is M4. Fine. And M1 is the most commonly used measure of money supply and is known as aggregate monetary resource. Again wrong. M3 is the most commonly used measure of money supply and is known as aggregate monetary resources. এটা কোন দেখিও এটা পড়িছেন না পড়নাନ୍ତି what is M1 M2 M3 M4 fine দেখিও ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ ଓକେ ଫାଇନ୍ ସି SDR ମୁଁ SDR କେତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନେଇଥିବି ତ SDR ବୁଝିବା ପାଇଁ ହଁ ଓକେ ଫାଇନ୍ SDR ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଓକେ ओके सो SDR रे कौन करेंसी थिला US डॉलर ओके फाइन ओके so US dollar Japanese yen Chinese renminbi and euro and British pound sterling these five currencies form the basket of SDR okay special drawing rights. Next question, consider the following statements. Production taxes and subsidies are independent of the volume of production, right or wrong? A question to actually आपको प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस प्रोडक्ट सब्सिडीज एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज डिस्कस करते क्लास रे ए क्वेश्चन टा एक्चुअली ए क्वेश्चन टिके आपको बुद्धि खर्च करिया पड़िबो करि परिबे किंतु टिके जस्ट आपको माइंड खटाया पड़िबो ए क्वेश्चन आंसर देबा पय अच्छा प्रोडक्शन टैक्स रो गोटे एग्जांपल दे परिबे प्रोडक्शन टैक्स रो मते देइथिले एग्जांपल नोट्स रे भी अछि एग्जांपल प्रोडक्शन टैक्स रो गोटे एग्जांपल दे परिबे किबा प्रोडक्शन सब्सिडी रो गोटे एग्जांपल दे परिबे स्टैम्प ड्यूटी
Stamp duty or land tax. Stamp duty is an example of production tax, whereas water subsidy is an example of production subsidy. बुझिपारल? GST is an example of product tax. GST is an example of product tax. बुझिपारल? सेमती product subsidy रो भी example अछि. Fine. For example, fertilizer subsidy is an example of product subsidy. ताले एटी कोन लेखा हिची? Product taxes and subsidies are paid or received per unit product. ଯେତେବେଳେ गवर्नमेंट ध्यान शुणु जहा कहूची, ଯେତେବେଳେ गवर्नमेंट प्रोडक्ट टैक्स लेवी करे किंबा प्रोडक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करे, से पर प्रोडक्ट करे. सपोज आपण गोटे पानी बोतल किणुचंती, तो पानी बोतल दाम होची 10 टंका, तो गवर्नमेंट से पर यूनिट पर प्रोडक्ट ऊपर टैक्स लगो. 10 टंका पर सपोज आपण टंका टैक्स दउचंती, आपण 2टा बोतल पानी बोतल किनले केतना टैक्स देबे? 2 टंका. काई पर प्रोडक्ट ऊपर केतना टैक्स लागिची? टंका टैक्स लागिची. 2टा प्रोडक्ट किनला मन केतना टैक्स देबे? 2 टंका टैक्स देबे. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट टैक्स. सेमती प्रोडक्ट सब्सिडी, गोटे जदि आपण फर्टिलाइजर पैकेट किणुचंती, सपोज 100 टंका सब्सिडी, त 2टा किनले केतना सब्सिडी हला? 200 टंका सब्सिडी. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी, जोटा कि लागे कोन? ऑन द प्रोडक्ट, पर यूनिट प्रोडक्ट ऊपर लागे टैक्स किंबा पर यूनिट प्रोडक्ट ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. बट व्हाट अबाउट प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. सपोज गोटे फार्मर अछि, सपोज देयर इज ए फार्मर, गोटे लैंड रे चाष करूची, बुझि पारले? चाष करूची कोन, ताकू गवर्नमेंट जदि वाटर सब्सिडी प्रोवाइड करूची, जदि गवर्नमेंट ताकू वाटर सब्सिडी प्रोवाइड करूची, ताहले से वाटर सब्सिडी कोन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड हेइ अछि? डिपेंड हेइ कि अछि? ता माने बुझि पारलन? ता माने सपोज फार्मर 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करला, 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करला, ता माने गवर्नमेंट कहूची कि मु 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करिवा पई जेतिकी पानी खर्च होउची, सपोज 1 kg व्हीट पे केते पानी खर्च हुए? 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करिवा पई केते लीटर पानी खर्च हुए? पाखा पाखी केते? नियर अबाउट 2500 लीटर्स, 2500 लीटर खर्च हुए गोटे केजी व्हीट प्रोड्यूस करिवा पई. भाई 2000 टू 3000 लीटर्स खर्च हुए. तो गवर्नमेंट कहूची कि मु 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करिया पई मु आपन को 500 लीटर रो सब्सिडी देबी बोली, 500 लीटर पानी सब्सिडी देबी. गवर्नमेंट इज गिविंग इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. गवर्नमेंट इज गिविंग प्रोडक्शन सब्सिडी इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. जेते पानी खर्च करू इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. फाइन. से एंटायर वाटर ऊपर से सब्सिडी प्रोवाइड करूची. इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ. बुझी पाउछ ना? बुझी पारले नहीं? फाइन. The product and subsidy are independent, right? Product tax and product subsidies are paid also right. Answer is C, both 1 and 2. Okay. अच्छा, 1 kg मटन प्रोड्यूस करिया पे केते पानी खर्च हुए? मटन 1 kg मटन प्रोड्यूस करिया पे केते पानी खर्च हुए? जानिछन 1 kg मटन, 1 kg तो गोटे लोक एकला खाइ जीवनी, गोटे 2 लोक खाइ जीवे. तो 1 kg मटन प्रोड्यूस करिया पे केते लीटर पानी खर्च हुए? 15,000 लीटर्स, नियर अबाउट 15 to 16,000 लीटर्स पानी खर्च हुए. 15,000 लीटर पानी केवल 1 kg मटन प्रोड्यूस करिया पे. बीफ जानछन 1 kg बीफ प्रोड्यूस केते पानी खर्च हुए? पाखा पाखी 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर. ओके, एनीवे फाइन. सी